you, Dr. Sandeep. Let's move forward with our session. And I'm going to give you a brief outline of what we're going to discuss today. Basically, हम आज बात करेंगे bioethics की definition के बारे में. We're going to start with a very basic definition, and then we're going to gradually evolve into more complex definitions, and we're going to get ourselves accustomed to more details. लेकिन अभी हम start करेंगे with a very basic definition. हम कुछ principles of bioethics के बारे में बात करेंगे. Again, because this is your first session and we're only discussing introductions, तो हम तीन basic principles के बारे में बात करेंगे, which is respect, beneficence and justice. कुछ unethical practices के बारे में हम बात करेंगे, past and present की कुछ guidelines discuss करेंगे, and then we're going to share some scenarios with you in which we're going to ask you to make the right choices. Okay, so before I proceed further, I'm going to give you a warning. कुछ sensitive and graphic pictorial content है इस presentation के अंदर, so you have been warned. डेफिनेशन कोई मुझे बताना चाहेगा बेसिकली कि डेफिनेशन क्या है बायोएथिक्स की? बायोएथिक्स क्या होती है? आई डोंट रियली नीड अ बुकिश डेफिनेशन. आपके अल्फाज के अंदर आप क्या समझते हैं बायोएथिक्स क्या है? बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर मुझे कोई बताना चाहे तो. डॉक्टर सुमेरा. या इट वुड बी समथिंग लाइक हाउ हमारे जो पेशेंट्स होते हैं स्पेशली, ठीक है, बायो इट्स कम्स फ्रॉम दी मेडिकल साइंसेस के लिए वर्ड होगा, और एथिक्स उनके साथ डीलिंग वगैरह हम किस तरह से करते हैं. तो मेरे ख्याल से इसी को रिलेटेड इसकी डेफिनेशन होगी कि ओके, आपकी डीलिंग्स विद द पेशेंट, ठीक है. एथिकल डीलिंग्स विद द पेशेंट. सो इफ आई सेट द टर्म बायो असाइड एंड अगर मैं सिर्फ एथिक्स के बारे में बात करूं, तो एथिक्स क्या होते हैं? कोई अल्फाज में मुझे बताएं. Anyone, Dr. Darosham, Dr. Sandeep, Dr. Adnan, if anyone of one of you would like to tell me, ethics क्या है? Ethics means etiquette, how to deal with others, how to behave. Okay, so Dr. Anisa कह रही हैं ethics basically tell us how to behave. Dr. Adnan भी कुछ कहना चाह रहे थे. Sir बोलें. Ethics, I guess, it's about the principles that guide us about our behavior and decision making. No? Okay, so यानी हमारे behavior के बारे में guiding principles हैं. And like what is in our particular society, like, because ethics also do change from society to society a bit. Noted, And sir. it's important, and it's very important while managing, looking or following the ethics of one should respect the other person's rights and dignity, and there are certain elements of the ethics like honesty, fairness, responsibility, justice, empathy. That's my understanding. Thank you so much. You're very right. Dr. Darosham ने chat में लिखा है ethics or bioethics is basically the study of social, ethical and legal issues that help in biomedical research. Dr. Darosham, you're also right. देख लेते हैं मैंने कुछ basic definitions क्या बताई हैं ethics की, which down to a very fundamental level क्या होती हैं. So ethics are a set of moral rules and professional codes of conduct. ये कुछ moral rules हैं and कुछ professional codes of conduct हैं, जैसे डॉक्टर अदनान ने हमें बताया. Basically ये rules वो हैं जो हमें फर्क करने में मदद करते हैं बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट करने में या फर्क करने में हमें मदद करते हैं ये रूल्स या ये मोरल एंड प्रोफेशनल कोड्स ऑफ कंडक्ट. कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जो आपने आउटलाइन में भी देखे, एंड अगेन दे आर अ पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन, व्हिच आर रिस्पेक्ट, जैसे डॉक्टर अदनान ने भी हमें बताया कि इट्स इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट एवरीवन. बेनिफिसेंस, व्हिच इज इट इज इंपॉर्टेंट टू डू गुड फॉर एवरीवन. एंड जस्टिस, सबको बराबरी के साथ ट्रीट करना या सबको इक्वली ट्रीट करना, वो हमारे पेशेंट्स हों या हमारे कॉलीग्स हों, whoever in whatever context they are. So अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने प्रोफेशन को रैंक करें इन टर्म्स ऑफ लीस्ट एथिकल और मोस्ट एथिकल, 1 से लेके 10 तक अगर मैं कहूँ आपको रैंक करें, विद 1 being the हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिक्स एंड 10 being the lowest level of ethics, तो हमारा प्रोफेशन कहाँ आता है अगर आप हम कंपेयर करें टू दी अदर प्रोफेशंस, विच कैन बी लॉयर्स, पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, इंजीनियर्स, एनीवन, जितने भी प्रोफेशन हैं, अगर आप अपने प्रोफेशन को रैंक करें रिलेटिव टू दी अदर प्रोफेशंस, डू यू थिंक आप नंबर 1 पे होंगे, 2 पे होंगे या 10 पे होंगे? सो 1 by 1 इफ यू कैन ऑल टेल मी. डॉक्टर अदनान जी बताएं. I think professions which are directly connected to human beings, which are directly interaction like education, law, health, they have a very high responsibility and high accountability at the same time. So since we are connected with it being medical as well as education sector, since we are part of the academic, so I definitely rank at number 1 because our job is very, very, very delicate
we need to be very much responsibility. We have a lot of responsibility on our hand, and at the same time, we are highly accountable as well. क्योंकि Okay, हमारी so छोटी सी accountability गलती जो है वो transparency पूरी हमारे पूरी प्रोफेशन रिश्तों का को बना पार्ट है. Yes, yes, thank you. Accountability and transparency हमारे प्रोफेशन का पार्ट है, and we're dealing with human lives. तो आप हमारी ethical practices को रेट करते हैं at number 1. Let's see डॉक्टर सारा क्या कहती हैं. डॉक्टर सारा कहाँ खड़े हैं आप, नंबर 1 पे, नंबर 10 पे, या somewhere in the middle? In ideal scenario, we should be at 1. वही बात जो डॉक्टर अदनान ने बोली थी, for the similar reasons. But on actual basis, we lie on 3rd or 4th. Like we are not completely following this thing. Okay, so आप कहती हैं we're not at the top, but we're not also at the bottom. हम 3 या Yes. 4 के ऊपर आते हैं. Okay, so अब मैंने आपका रिस्पॉन्स नोट कर लिया है. Okay, so डॉक्टर अनीसा, what do you say? कहाँ हैं हम? According to me, our profession ranks at number 1 because we are dealing with the human beings, and we should feel ourselves more responsible, and we should try to behave like this and act like this. But of course, there are some deficiencies that we need to rectify. So hopefully, we will do. Okay, so you're ranking us at number 1. ठीक है. Okay, so डॉक्टर संदीप, क्या कहते हैं आप? we are fighting, we are actually 2 or 3 because we are not 3 profession. or 4? I think so 3. It must be 3. Okay, ठीक है, तो आप कह रहे हैं 2 पे हैं हम. ठीक है. डॉक्टर सना, what do you say? I think being following the standards, we should be at the highest. ठीक है, but we are practicing. मैं तो साफ कहूंगी कि हम तो मिडिल में भी नहीं खड़े हुए, हम तो बहुत नीचे खड़े हुए हैं. अब अगेन वो वाली बात है कि अगर हम प्राइवेट को बात करें और गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें अगेन फिर हम बहुत डिफरेंशिएटिंग उस पे खड़े हुए हैं. तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत लोवेस्ट पे खड़े हुए हैं, मैडम मुझे एक ये ऐसा नंबर लगता है. प्लीज, कोई भी नंबर आप दे दें. आई थिंक अगर लोवेस्ट से स्टार्ट करें, आप 10 कह रहे हैं ना लोवेस्ट, तो Yes, हम 10 मुझे तो लगता है हम 7-8 पे खड़े हैं. 7 और 8. ठीक है. तो देखते हैं एक सर्वे के रिजल्ट्स क्या कहते हैं, एविडेंस क्या कहता है इस बारे में. So a survey showed that when given a choice of 30 professions and asked to rate them in decreasing order of professional ethics, the survey participants rated the health-related professions in the bottom 10. यानी जब एक सर्वे पॉपुलेशन को कहा गया कि आप सारे प्रोफेशंस को रैंक करें, तो जितने भी हेल्थ एंड अलाइड हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशन से, चाहे वो डॉक्टर्स हों, वो नर्सेज हों, फिजियोथेरेपिस्ट हों, कायरोप्रैक्टर्स हों, जो भी हों, डेंटिस्ट हों, उनको उन्होंने बॉटम 10 में रैंक किया. So do you agree with this results of this survey? Especially the ones who were rating us in a higher order, जैसे डॉक्टर अदनान है, डॉक्टर अनीसा हैं. क्या कहेंगे आप लोग, क्या ये सर्वे के रिजल्ट से आप अग्री करते हैं कि पब्लिक कहती है कि हम जो हैं वो बॉटम 10 में हैं, या हम बिल्कुल बॉटम में आते हैं, बाकी प्रोफेशन जो हैं, बी इट लाइक लॉयर्स और पॉलिटिशियंस और इंजीनियर्स और एनीवन, वो सब जो है हमसे बहुत बेहतर हैं इन एथिकल प्रैक्टिसेस? डू यू अग्री विद द रिजल्ट्स ऑफ दिस सर्वे? I think we are not satisfying the patients what they really want to hear from our side, and the deficiencies lie on maybe while satisfying them. So that's why they think that doctors are not like तो up क्या to वो the ठीक mark. कह रहे हैं, क्या वो ठीक कह रहे हैं, क्या हमारी एथिकल प्रैक्टिसेस वाकई इतनी बुरी हैं कि हम बॉटम में आते हैं? Yes, definitely. We are our ethical practices are not like that. ओके, That तो that डॉक्टर should अदनान, आप क्या कहेंगे? I'd also like to hear डॉक्टर सारा क्या कहती हैं इस बारे में. डॉक्टर सारा, डू यू एग्री विद द रिजल्ट्स ऑफ दिस सर्वे? क्या पब्लिक सही कह रही है यहाँ पे? I disagree because what I think कि पब्लिक जो है वो एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स डू मेक मिस्टेक्स ना. तो मैं ये नहीं कह सकती कि लोएस्ट में आना चाहिए हेल्थ प्रोफेशन या उससे रिलेटेड जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको आप रैंक करो लोएस्ट 10 में. हाँ, ये है कि दे शुड बी इन द हाईएस्ट, बट दे आर नॉट इन द हाईएस्ट. सो आई डू ओके, नॉट कंप्लीटली एग्री विद दिस सर्वे. ठीक है. तो यानी आप कह रही हैं कि हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हम इंटेंशनली कुछ गलत नहीं करते, एंड वी डू नॉट बिलोंग इन द बॉटम. हम चाहे टॉप पे ना हो, लेकिन हम बॉटम में बिलोंग नहीं करते. एग्जैक्टली, आई वुड एग्जैक्टली. रिक्वेस्ट यू टू रीड दिस नेक्स्ट स्लाइड, एंड प्लीज देखें ये रिपोर्ट या ये आर्टिकल क्या कह रहा है,
and if you could just summarize it for me and tell me कि what do you understand from this, क्या हो रहा है यहाँ पे? Let me read it first. I guess important चीज यहाँ पर ये कि एक where we are standing right now and where we should be, तो जो gap है, तो ideally we should be at the top in the rank, but due to some these incidents वो चीजें आती हैं, और as said earlier, like since we are directly connected to the human beings, human rights and all those people, तो एक छोटी सी भी गलती बहुत ज्यादा डोमिनेंट नजर आती है, और सिंस हमारे अकाउंटेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो रिपीटेड मिस्टेक्स एंड एरर्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर हम अकाउंटेबली बढ़ाते हैं, तो एट द सेम टाइम वी हैव टू इम्प्रूव द रिवॉर्ड सिस्टम एज वेल। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो दैट्स व्हाई वी हैव दीस सॉर्ट्स ऑफ इंसिडेंट्स, जिसकी वजह से हमारी एथिकल सिचुएशन जो बड़ी खराब होती जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर अदनान, लेकिन ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू एक आर्टिकल है या एक न्यूज़ क्लिपिंग है, क्या वो एक छोटी सी गलती है जो बड़ी नजर आ रही है, या वो कोई मेजर एथिकल प्रॉब्लम है यहाँ पे? यहाँ पर तो मेडिकल नेग्लिजेंस है जो इसमें बताया गया है। एग्जैक्टली, एंड ये आर्टिकल आई थिंक 2017 का है, जब पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट पॉलिसी भी नहीं थी, एंड इट वाज नॉट रियली लीगल टू डू ट्रांसप्लांट, चाहे वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, इजाज़त ही नहीं थी। एंड फिर भी हम एक ट्रांसप्लांट टूरिज्म रिजॉर्ट बन गए थे, एंड पूरी दुनिया से लोग आ रहे थे एंड यहाँ पे अपने ऑर्गन्स जो हैं वो ले रहे थे, ट्रांसप्लांट्स करवा रहे थे, एंड इट वाजंट रियली लीगल। एंड कौन कर रहा था वो सब? यहाँ के डॉक्टर्स कर रहे थे, यहाँ के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कर रहे थे। So now, do you understand where the survey participants या where the public was coming from? And क्या अब आप कुछ एग्री करेंगी उनके ओपिनियन के साथ कि हमारी एथिकल प्रैक्टिसेस कुछ खास अच्छी नहीं है? क्या हम इसको अनएथिकल कहेंगे या इलीगल कहेंगे? तो ये जो प्रैक्टिसेस है, आपने जो बताया, तो लॉज इतने स्ट्रांग नहीं थे, अगेन इलीगल थिंग्स आ जाती हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि क्योंकि हमारे यहाँ रिवॉर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी दोनों नहीं मौजूद, तो फिर लोग इस किस्म के अनफेयर मीन्स इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन क्या उसकी वजह से हम पूरी कम्युनिटी को कहेंगे कि दे स्टैंड लोअर एथिकल स्टैंडर्ड्स? तो मेरा ये सवाल है। ठीक है, so that's very fair enough. हम ऐसा करते हैं कि हम अपने होराइजन को थोड़ा सा ब्रॉडन करते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट द लोकल कॉन्टेक्स्ट, हम ओवरऑल हेल्थ केयर कम्युनिटी या हमारी बायोमेडिकल कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स मूव अ लिटिल फॉरवर्ड एंड न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के बारे में बात करते हैं। तो दिस डज नॉट रियली कंसर्न पाकिस्तान, बट अ वाइडर कॉन्टेक्स्ट। किसी को पता है न्यूरमबर्ग ट्रायल्स क्या थे? एंड इफ यस तो प्लीज मुझे बताएं, और अगर नहीं तो आई एम श्योर यू ऑल हैव योर फोन्स विद यू। जरा सा अगर कोई मुझे सर्च करके बताए कि व्हाट वर द न्यूरमबर्ग ट्रायल्स। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आई रेड इट सम टाइम बैक, आई गेस इट वाज समथिंग ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब वो जर्मन्स और जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे with the prisoners and all that, so it was all You're about very that right. unethical practices जो उस वक्त हुई थी, You're उसके very बाद right. ही फिर ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो दीज आर अबाउट जो कि ट्रायल्स हुए थे टू होल्ड अकाउंटेबल द जर्मन्स एंड अदर पीपल इन द वर्ल्ड, जो कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ऑन ह्यूमंस। एंड उसके अंदर पीपल हु वर स्टैंडिंग ट्रायल, डॉक्टर्स की तादाद इतनी ज़्यादा होती थी अक्सर के उन ट्रायल्स को अक्सर डॉक्टर्स कोर्ट कहा जाने लगा। एंड in one of the famous cases, 20 of the 23 defendants were medical doctors and were accused of having been involved in human experimentation and mass murder of up to 20,000 under the guise of euthanasia. हम जर्मनी से आगे बढ़ते हैं, हम जापान की तरफ चलते हैं। जनरल शीरो इशी का नाम किसी ने सुना है? एंड कोई मुझे बताना चाहेगा कि why have I included him in this presentation? Does anybody know about जनरल शीरो इशी? कौन थे वो साहब, क्या करते थे, एंड एथिक्स से वो कैसे रिलेवेंट है? Some unethical publication, I guess. Unethical publications. Okay, ठीक है। If anybody else would like to give a little search on Google और जरा देख के मुझे बताना चाहें कि जनरल शीरो इशी किस बात पे मशहूर है? Biological warfare. Biological warfare. Oh God, doesn't sound very ethical, does it? And Japanese are people who pride themselves of being very ethical and very disciplined. And वहाँ के एक जनरल साहब जो कि एक डॉक्टर भी थे, ही फेमस फॉर उनकी वजह शोहरत जो है वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है।
सो वैसे तो ये एक इंपीरियल यूनिट था जापानीज आर्मी का, वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट वगैरह चलाते थे, लेकिन इन एक्चुअल मतलब वो क्या करते थे, he ran a department which was a secret biological and chemical research development unit for the imperial Japanese army, and वो कुछ research experiments करते थे on Chinese and Russian captives जो पकड़े जाते थे फौजी चाइना से रशिया से ड्यूरिंग द वॉर, उनके ऊपर ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते थे, और वो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये. So he used to amputate parts of the body to study blood loss कि कितना blood loss होता है. He used to remove parts of the brain, parts of the lung and parts of the liver to study कि उसका क्या impact होगा on the human body. He used to hang people upside down to determine their time of death. वो note करते थे कि कितनी देर में a person passes away if he is hung upside down without food and without water. He used to inject air into the arteries of people and note what happens and कितना time लगता है death होने में, and then he used to commit feticide. And अगर कोई मुझे बता सके कि was he ever held accountable for his crimes? Anyone? Dr. Sara, Dr. Samira, anyone? आपको क्या लगता है इनको सजा मिली होगी इन चीजों की? Think he did not. He As did per the not. Google, I don't think Yes, he so. was never punished because of his contributions to the discipline of science and particularly to the discipline of obstetrics and gynecology. I believe we have two gynecologists with us, Dr. Sana and Dr. Anisa, I believe ना. And आप लोगों का जितना भी embryology का basic knowledge आता है ना, उसकी जो initial diagrams हैं, हम ये weeks of gestation की कि first week of gestation में baby कैसा है, first month में कैसा है, trimester में कैसा है, they all stem from his work. He used to imprison women in different periods of gestation and he used to kill them, और फिर वो उनको dissect करते थे देखने के लिए कि उनके fetus जो है वो किस position में, और फिर उनके वो diagrams बनाकर books में add करते थे. And the scientists or healthcare community thought कि उनकी इतनी अच्छी contribution है, so they should side with him and make sure that he doesn't get punished. आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं जापान से यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ. Again, doctors in the United States, they do take pride in the fact that their practice is very ethical and very professional. और देखते हैं कि वहाँ पे क्या कर रहे थे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. सो किसी को पता है टस्कगी स्टडी के बारे में, जो कि फेमस एक सिफिलिस स्टडी थी? अगर कोई गूगल पे सर्च करके मुझे बताना चाहे. आई गेस इसमें इन्होंने अगेन प्रिजनर्स को लिया था, कि फीमेल प्रिजनर्स को उनको प्रेग्नेंट करवाया था, सिफिलिस इन्फेक्शन इंड्यूस कराया था, और देन जो है उनको मारने के बाद फिर वो फीटस एग्जामिनेशन करके दिखा था कि क्या चेंजेस आते हैं. ओके, सो बेसिकली टस्कगी स्टडी जो थी एज अ ट्रीटमेंट प्रॉमिस की गई थी टू द ब्लैक पॉपुलेशन और टू द नेग्रो पॉपुलेशन, और कहा गया था कि हम आपको फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, फ्री हाउसिंग, फ्री मील्स प्रोवाइड करेंगे, और हम आपकी सिफिलिस को ट्रीट करेंगे. बट एक्चुअली क्या किया गया कि जो भी इनके वॉलंटियर्स थे उनको राउंड अप करके एक जगह बंद कर दिया गया, एंड इवन आफ्टर ट्रीटमेंट वाज डिस्कवर्ड दे वर नेवर गिवन दैट ट्रीटमेंट. ये सिर्फ इसलिए किया गया सो दैट उनका जो नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज है वो डॉक्यूमेंट किया जा सके डॉक्टर्स की तरफ से, और वो देख सकें कि पीपल हु डू फॉल सिक विद सिफिलिस, हाउ इज इट दैट दे डाई एंड व्हाट पेन डू दे सफर थ्रू, और उनकी क्या कंडीशन होती है. ओके, सो अगेन अगर हम और डिटेल में जाएं तो हाँ, थैलेडोमाइड के बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि कैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च की एथिकल जो के प्रिंसिपल्स थे उनको वायलेट किया इन रिसर्च फॉर दिस ड्रग, एंड देन उसके नतीजे में हाउ मेनी बेबीज वर बोर्न विदाउट लिम्स, दैट इज वेल डॉक्यूमेंटेड. ओट्स कौन कौन खाता है ब्रेकफास्ट में? I'm sure most of the ladies do enjoy eating oats for breakfast. Not me. I don't like the texture. Okay. So देखते हैं कि डॉक्टर्स ने यहाँ क्या किया था. सो क्वेकर ने जो है रीच आउट किया हेल्थ केयर कम्युनिटी को और कहा कि हम चाहते हैं कि आप प्रूव करें कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे ओट्स के अंदर दे डू पेनिट्रेट इनटू द बॉडी. तो उन्होंने एक ऑर्फनेज में जाकर, इट्स अ वेल डॉक्यूमेंटेड केस, इन 1950s दे सिलेक्टेड 100 बॉयज लिविंग इन एन ऑर्फनेज और उनको क्वेकर ओट्स दिए, बट रेडियोलॉजिकली मार्क किया था उन सारे न्यूट्रिएंट्स को ताकि वो ट्रेस कर सकें कि वो बॉडी के किस किस पार्ट में पेनिट्रेट करें एंड वेदर वो बॉडी की बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं या नहीं. But as a result of those radiological markers, a lot of those children later died and suffered from a lot of, benign and metastatic, problems. खैर, ये सब करने के बाद हेल्थ केयर कम्युनिटी में कुछ आवाज़ें जागी एंड उन्होंने काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स भी हुई. 1947 में न्यूरमबर्ग कोड आया,
1948 के अंदर UN ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, 1964 में डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी आई, जो कि अभी तक बेसिस ऑफ फाउंडेशन हमें सर्व करती है फॉर हमारा बायोएथिक्स, स्पेशली इन पब्लिकेशंस एंड रिसर्च। 1979 में बेलमोंट रिपोर्ट प्रोड्यूस हुई। 1993 में CIOMS की इंटरनेशनल गाइडलाइंस आई फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, एंड देन फाइनली जो अब हम आजकल फॉलो करते हैं ICH GCP गाइडलाइंस आई 1996 में, और वो हर साल अपडेट होती हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू कि वन बाय वन आप गूगल पे प्लीज जाएं, सर्च करें और मुझे सिर्फ की पॉइंट्स बता दें कि हर रिपोर्ट ने या हर जो भी कोड्स रिलीज हुए एंड डिक्लेरेशंस आई, उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट्स लाए इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, एंड किन पॉइंट्स को उन्होंने हाईलाइट किया, किसके ऊपर काम किया। सो आई वुड रिक्वेस्ट के वन ऑफ ईच ऑफ यू कैन गो ऑन गूगल एंड देन कोई भी एक आइदर न्यूरेमबर्ग कोड या फिर बेलमोंट रिपोर्ट पढ़ें एंड मुझे सिर्फ ब्रीफली बता दें, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, what these reports and what these codes introduce and what they talked about. I will give you 5 minutes for that. Yes, Dr. Nan, you're raising your hand. जी बताएं क्या पढ़ा आपने? Am I audible? Yes, you're audible, Dr. Nan. न्यूरेमबर्ग कोड बेसिकली जैसे कि अभी जिक्र भी किया था हमने कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुई थी उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इट टू प्रायोरिटाइज और टू इंश्योर द ह्यूमन सेफ्टी। और वहाँ पर जो भी मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन अगर किसी भी लेवल पे करनी भी हो तो उसमें दे नीड टू इंश्योर कि जी ह्यूमन लाइफ जो है वो सेफ रहे, और इन्फॉर्म कंसेंट जरूर वहाँ पे मौजूद। तो उनके अपने 10 पॉइंट्स थे, बट द बॉटम लाइन इज they ensure human safety and consent to for both of these. Okay, thank you very much. If anybody else would like to tell me about any of the other principles, yeah, if Dr. Adnan would volunteer to, tell me anything else about the other documents. I think ये Belmont report के अंदर they came up with the principles of respect, beneficence and justice, and it says about the research, के boundaries between biomedical and behavior research, role of assessment of risk benefit criteria, and appropriate guidelines for selection of human subjects. I think this is what I could gather. थोड़ा सा. Wonderful. Thank you so much. Okay, so anybody else with any of the other principles? I think it's taking a little time ढूंढ के summarize Okay, करना ना. कोई बात नहीं, I'll So give you a if few more you minutes. हाँ. About UN Universal Declaration of Human Rights. जी बोले Dr. Anisa. Yes. About the UN Universal Declaration of Human Rights, this was actually a committee that was assembled by the United Nations, and they highlighted about the rights and freedom of all human beings, and they passed some resolution regarding the rights of human bodies. Yes. Was all that was discussed in that.
Thank you very much. Dr. Adnan, आप कुछ कह रहे थे before you got interrupted? Sorry, मुझे शायद कोई और नहीं बता रहा था। तो यह डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ के बारे में था कि इट बेसिकली a set of principles regarding the human experimentation. It was developed by the World Medical Association regarding the ethics. और ये बेसिकली थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फर्दर अपग्रेडेड पोर्शन था नवंबर कोर्स का, जिसमें फर्दर फोकस किया गया था कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन में क्या क्या चीज़ों की इम्पोर्टेंट है और हम किस तरह से सब्जेक्ट के राइट को इंश्योर कर सकते हैं, कंसेंट को इंश्योर कर सकते हैं, ऑटोनॉमी को, जस्टिस को, वनरेबिलिटी को, एंड हाउ वी मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल. इट्स बेसिकली an updated version of the Nuremberg Code. You're very right. So each document did build upon the consensus जो कि achieve होता था in previous documents and उन्हीं को advance किया जाता था. I do have a summarized version of what each of the documents, offers in this slide in front of you. Take a moment, read it, and then हम आगे बढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. वैसे ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा, आपके एलएमएस पे भी अपलोडेड होगी, और ये वीडियो लेक्चर जो होगा हमारा वो भी मैं आपके लेक्चर रिपोजिटरी में अपलोड कर दूंगा. सो इफ एनी वन ऑफ यू इज थिंकिंग कि हम थोड़ा जल्दी पेज पे चल रहे हैं तो आप वहाँ पे जाकर उसे देखकर डिटेल में उनको पढ़ भी सकते हैं. ओके, सो अगर हम समराइज करें कि ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स किन प्रिंसिपल्स पे एम्फेसाइज कर रही हैं, तो वो बेसिकली वी कम डाउन टू 3 प्रिंसिपल्स, दैट इज ऑटोनॉमी एंड रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन्स. कि अल्टीमेट डिसीजन जो है पेशेंट के बारे में, उसकी वेलबींग के बारे में, रिगार्डिंग व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी अडॉप्टेड, वो उस पेशेंट का खुद का है. वेदर नॉट उसने उस रिसर्च में पार्टिसिपेट करना है, वेदर नॉट उस ट्रीटमेंट में उसने पार्टिसिपेट करना है, ये सारे डिसीजंस जो हैं पेशेंट ऑटोनमस है और उसने खुद लेने हैं. यू अ डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैन नॉट टेक डिसीजंस, और रिसर्च कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द रिसर्च सब्जेक्ट और द पेशेंट. द सेकंड प्रिंसिपल वाज बेनिफिसेंस और नॉन मेलिफिसेंस, यानी कि हम जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, अगर हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर हम कोई बायोमेडिकल रिसर्च कर रहे हैं, तो इट शुड ट्राई टू बेनिफिट द पेशेंट, एंड नॉन मेलिफिसेंस कि उससे किसी भी तरीके से पेशेंट को या हमारे रिसर्च सब्जेक्ट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. एंड देन फाइनली जस्टिस, यानी हमने बराबरी के साथ सबको ट्रीट करना है यहाँ पे. सो व्हाट वी मस्ट डू, करना क्या चाहिए? सॉरी डॉक्टर, आई एम डिस्टर्बिंग यू. रिस्पेक्ट में इट्स बेसिकली कि उसकी राइट है कि वो कौन सा ट्रीटमेंट ले रहा है. Exactly, दिस yes. मीन रिस्पेक्ट. ठीक है, Yes. कैसा है उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट कि वो करना Absolutely. चाहता है या नहीं. हाँ, ठीक है, ऑटोनॉमी थैंक में यू उसका सो मच. अपना डिसीजन है, he decides for his or her own self. And respect में है कि we have to respect the decision that the patient is making for themselves. So तो हमें ये दोनों एक ही प्रिंसिपल है या दोनों अलग है? बेसिकली ये दोनों सेपरेट प्रिंसिपल्स हैं. ओके, आई वाज थिंकिंग कि एक है. ठीक है, हाँ, और ठीक इनको है. हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो you'll be able to realize कि किस तरह से ये दोनों थोड़े से मुख्तलिफ हैं. So what do we have to do? We have to follow the basic principles. We have to respect people, whether they are our patients, our peers, or our research subjects. We have to try to benefit others. We have to show that we treat everybody with justice and equality, and then we have to try to make a conscious effort to understand ethics. So we're all good people, but हमसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां होती हैं. And I'm going to show you a few opportunities, show you a few scenarios and give you the opportunity to reflect के हमारी practices कहती हैं. Okay, so सबसे पहले हम पहला scenario देखते हैं. I'm going to give you a few minutes, like 2 minutes to read it, and then let's reflect on it and discuss के यहाँ क्या हो रहा है और आपका आप क्या करते अगर आप इस पोजीशन में होते. कैन आई आंसर? जी डॉक्टर सुमैरा, प्लीज. I think it would be very unethical to not inform the patient
the right procedure would be to inform the patient and take informed consent in writing from the patient and tell him regarding the study के क्या study है क्यों हो रही है एक proper informed consent की तरह वो लेके तो I don't think so कि patient इतना मना करते लेकिन वो लेके फिर करना चाहिए इस situation में rather than कि friend को benefit करने के चक्कर में कि कोई बात नहीं थोड़ा सा ले लिया। ओके सो मैं एक और बात ऐड करना हाइली चाहूँ डॉक्टर अनक्रिटिकली मुनीब। होना क्या चाहिए और होता क्या है, अक्सर ये दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। जी डॉक्टर साहब बताएं। हाँ डॉक्टर मुनीब, कैन यू हेयर मी? जी बिल्कुल डॉक्टर साना, मुझे आवाज आ हाँ, रही है। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जहाँ एक तो ये बात है जो डॉक्टर ने कही, दूसरी बात ये कि जहाँ जिस सेटअप में आप काम कर रहे हैं उनकी भी तो कोई गाइडलाइंस होंगी ना, तो उन प्रैक्टिसेस को भी तो फॉलो करना इज ऑल्सो एथिक्स। तो उनको बगैर इन्फॉर्म किए भी आप किस तरह से किसी को ब्लड दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल है सेकंड थिंग इज दिस, फर्स्ट थिंग इज जो उन्होंने कही और सेकंड थिंग वाज दिस। ठीक है, डॉक्टर अदनान इज रेजिंग हिज हैंड। डॉक्टर अदनान, आपने कुछ ऐड करना है? जी, बिल्कुल 2 पॉइंट्स तो ऑलरेडी आ गया। तीसरा पॉइंट ये कि जो रिसर्चर है उसको अपने इंस्टीट्यूशन से भी परमिशन लेनी होगी कि मैं फलां हॉस्पिटल में जाके लैब से सैंपल सेलेक्ट करना चाहूँगा। Consent should be at every point. The permission should be from the researcher own institution जहाँ से भी data collect होगा and then from the patient as well. बिल्कुल, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर आप तो रिसर्चर है ही नहीं, आप तो उस रिसर्च में पार्टिसिपेट भी नहीं करे। आपको तो सिर्फ आपके कॉलीग की कॉल आई है कि जब आप सैंपल लें तो 0.cc एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। सो हो जी, सकता है तो उसने पुलिस टीचर ने को ईआरसी actually लिया, क्या हो सकता है उसने तमाम परमिशन दी हो, आपसे उसने एक रिक्वेस्ट या एक फेवर मांगा है। आप क्या करेंगे यहाँ पे? डॉक्टर मुझे उसमें ये होता है कि बेसिकली सिर्फ रिसर्चर ने अपने इंस्टीट्यूशन से सिर्फ ये परमिशन नहीं लेनी होती कि मैंने सैंपल के लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए सैंपल कलेक्ट करना है, बल्कि जिस जगह से कलेक्ट करना है उस इंस्टीट्यूट का नाम भी मेंशन करना होता है। तो अगर आपका कुलीग आपको कांटेक्ट कर रहा है, उसने अपने आईआरडी में या उसने नहीं मेंशन किया हुआ, तो फर्स्ट यू नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम दिस ओन इंस्टीट्यूशन। और आइडियली हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है कि हम शेयर भी कर लेते हैं सारी चीज़ों को, जो कि नहीं होना चाहिए। एथिकली सारे अप्रूवल के बाद ही आप जो है सैंपल शेयरिंग करवा सकते हैं। Wonderful. So what I gather from this discussion, Dr. Samera, Dr. Adnan और Dr. Nisa कह रहे हैं कि वो यहाँ पे मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज we have to adopt a more ethical practice over here and हम उनसे परमिशन लिए बगैर यहाँ पे हम उस ब्लड कलेक्ट नहीं कर सकते। Okay, so let's move on to the next scenario. यहाँ अगर आप होते तो आप क्या करते? Please take a moment and read the scenario. आई थिंक यहाँ पर भी हमें सेम अप्लाई करना चाहिए। हेलो, जी डॉक्टर संदीप, आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, हमें यहाँ पर पेशेंट से कंसल्ट करना चाहिए, भाई वो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, कि भाई हमें फिजिकल Okay, so कंसल्ट आपके पास अगर 2000 स्टूडेंट्स का डेटा है, so are you going to reach out to every one of them and seek consent? या आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कहेंगे सर आप रुक जाएं जब तक मैं 2000 स्टूडेंट से कंसेंट लेता हूँ, फिर मैं आपको जवाब दूंगा? अनएथिकल, बेसिकली अनएथिकली हम विदाउट एनी कंसर्न रिजल्ट सर आप यहाँ बच्चे करते क्या? देखिए अनएथिकल तो ये है, मैं पूछना चाह रहा हूँ आप इस सिचुएशन में आप क्या करते सर? डॉक्टर मुनीब, लेकिन इसमें एक एज इम्पोर्टेंट मना बात है, करना चाहिए। इट इज आई रिटन दैट we should not follow the SOD. Ideally, ओके ठीक ठीक है डॉक्टर संदीप, नोटेड। जी डॉक्टर सारा, आप कुछ कहना चाह रही थी? here it is written के head of department what she wants that she is aimed for this research is being conducted aiming for understanding the health trends and need of medical students. इस यानी मोटिव को अगर रखें बेस पर तो it won't be unethical to conduct a study. I know consent is important, but उसका जो मोटिव है स्टडी का उस that is for the benefit of the student and for the benefit of the like पूरे मेडिकल सिनेरियो के लिए. So ओके I सो don't यानी think अगर it will be नीयत unethical. अच्छी है तो आप किसी का डेटा चोरी कर सकते हैं। फॉर नहीं एग्जांपल ये इफ अ चोरी नहीं स्टूडेंट इज, let's assume if a student has a condition, for example he is HIV positive and वो डेटा जो है वो कोडेड नहीं था और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जो है उसका डेटा चल गया, would that patient really be comfortable in the HOD knowing कि उसकी क्या क्लिनिकल कंडीशन है या उसकी क्या मेडिकल कंडीशंस हैं? would that still be वो okay? बिफोर एनालाइजिंग उसको दी कोडिंग करेंगे ना,
तो इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट के लिए या मैनेजमेंट के लिए हम उस डेटा को यूज कर रहे हैं, बट मैं समझ फॉर गया। द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स इट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो टू डू द रिसर्च ना। वही बात आपकी, अगर 2000 स्टूडेंट्स है, हर किसी से तो कंसेंट हम नहीं ले सकते। ठीक है डॉक्टर अदनान, आप क्या कहेंगे? देखिए हर किसी से तो हम कंसेंट नहीं ले सकते, फिर हम क्या करें? नहीं देखिए, कंसेंट लेना तो जरूरी है, चाहे 2,000 20,000 तो इस पे आप इंटरव्यू जो आपका फॉर्म होता है परफॉर्मा एट द टाइम ऑफ सैंपल सिलेक्शन वहीं पर ही पूछ लेते हैं। और लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है, अगर आपने अपनी जॉब बचानी होती है तो आप मना नहीं करते, अगर आपका एचओडी आपको कह रहा होता है। अदरवाइज तो जी तो आपने डॉक्टर कंसेंट अदनान, लेनी लेट्स चाहिए। अज्यूम आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑफ्थेल्मोलॉजी के, और आपके जो डीन साहब हैं उन्होंने कहा है उनको डेटा चाहिए, सो आर यू गोइंग टू टेल हिम कि सॉरी सर, नॉट एथिकल, मैं तो नहीं दे रहा आपको डेटा? नो कि जी वो मुझे इस बात पे जॉब से निकाल सकते हैं, तो देन आई हैव नो अदर चॉइस। ओके एग्जैक्टली, और अगर प्रैक्टिकली है कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट ऑप्शनल पॉसिबल। है, तो अगर ऑप्शनल है वो जी दे ऐसा रहे है हैं तो डॉक्टर बात मुनीब, है। मैं एक चीज ऐड करूं? जी जी डॉक्टर सना प्लीज। हाँ, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि देखें, प्रैक्टिकली तो ऐसा ही होता है। ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर, मुझे पता है प्रमोशंस भी एचओडी के हाथ में है, हमारे सब चीजें उनके हाथ में होती हैं, तो हम तो ऑफ कोर्स सारी बातें नहीं करते। लेकिन बात ये कि इसमें आप डेटा किसी का इस तरह से तो नहीं ले सकते। अगर मेरा कोई डेटा है तो कोई भी अगर मैं आपको देती हूँ तो आप उसको आगे इस तरह से फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते, तो ये तो अनएथिकल प्रैक्टिस है। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे जब सिनेरियो में, जब हम लोकल सिनेरियोज की बात करते हैं, तो अगर हमारे ऊपर कोई सीनियर हमारा पी या कोई सीनियर अगर कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट कुछ होता है तो हमसे मांग रहा होता है, तो हम उसको रिफ्यूज भी नहीं कर सकते। तो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट और ये प्रैक्टिकल। नहीं कर सकते। ओके, सो डॉक्टर सुमेरा, आपका हाथ काफी देर से रेस्ड है, आई बिलीव यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस डिस्कशन। बिल्कुल। इस केसेस में ना पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसकी की इम्पोर्टेंट, अब क्योंकि हर स्टूडेंट सिंगल बच्चे से जाके कंसेंट नहीं ले सकते, तो इसीलिए इस तरह की पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स में होना बहुत जरूरी है। और अगर हम देखेंगे पीएमडीसी का जो परफॉर्मा है फ्रॉम, क्योंकि मैं अंडरग्रेड को डील करती हूँ मेडिकल एजुकेशन में ना, तो हम लोग ये पॉलिसीज वगैरह देख रहे होते हैं और इंश्योर करते हैं कि पॉलिसी हमारे पास बनी हुई हो। तो वो इसीलिए होती है, तो और इसी वजह से पॉलिसीज की इंपॉर्टेंस होती है कि आपके पास बनी हुई हो, तो कोई भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड हो या एकेडमिक रिकॉर्ड हो, उनको एक्सेस करने का कि क्या तरीका होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, आप कभी नाम के साथ डेटा देंगे नहीं, आप कोडेड डेटा देंगे, जो वो ट्रेंड देखना चाह रहे हैं वो आराम से उससे देख सकते हैं। लेकिन उसकी एक पॉलिसी जो है कंसेंसस के साथ बनना बहुत जरूरी है। यूजुअली हमारे पास यही होता है कि कॉलेजेस के पास नहीं होती, तो जब रेगुलेटरी बॉडी इस तरह की चीजें लेकर आती है तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो दिस, मैं अपने एक्सपीरियंस से, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड, कि मेरे हिसाब से इसके अंदर पॉलिसी होनी चाहिए इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट सिनेरियो। Again, without patient consent is we are not okay to forward these kind of things to other department. ओके, सो लेट्स मेक इट लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। डॉक्टर सना, पेशेंट तो चला गया है, डिस्चार्ज हो गया, फाइल पड़ी हुई थी, नहीं, और फाइल से भी, गवर्नमेंट सेटअप फाइल में इज आप काम करती पेशेंट हैं, एंड हॉस्पिटल और डॉक्यूमेंट। मैडम आप गवर्नमेंट सेटअप में काम करती हैं, फाइल में तो नंबर ही नहीं लिखा हुआ। भाई वो तो छोड़ देना, तो प्राइवेट में भी तो करते हैं दोनों जगह करते हैं। नहीं कर सकते आप। फाइल इज अगेन हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट, और फाइल मैडम इवन, आपकी दोस्त आपसे नाराज हो जाएगी, वो कहेगी मैंने एक फाइल बोला था, एक भाई फाइल यहाँ तो सभी भेज नाराज दो। रहते हैं डॉक्टर मुनीब, किस किस को खुश करें, लेकिन नहीं कर सकते, इट इज इम्पोर्टेंट। ओके डॉक्टर सारा, आप क्या करेंगी? आपकी कॉलीग है, उन्होंने कॉल किया, आपको कहा है मेरी सीपीसी है, प्लीज भेज दें, जरा तस्वीर भेज दें। नहीं, अगर मैं उसको भेज भी दूं तभी भी उसकी प्रेजेंटेशन के लिए तो वो फेयर नहीं है ना, क्योंकि वो तो उसके वार्ड की फाइल नहीं है। नहीं वो तो आई थी ना, रोटेशन करके गई थी मैडम आपके वार्ड में, फिर चली गई आप। नहीं, इट विल बी अनएथिकल। ये तो मैं नहीं बिल्कुल करूंगी। भी आना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसा कर लेंगे? करते हैं, कर लेंगे नहीं, करते हंड्रेड हैं, परसेंट दे आर डूइंग करेंगे। इट। ओके, सो हम अगले सिनेरियो पे चलते हैं।
अगेन फाइनली एक जैसे अनएथिकल कि भाई आप किसी की वीडियो बनाएं और उनसे पूछे आईडी रिसर्च एंड इट्स टोटली अनएथिकल। आई एम सॉरी डॉक्टर संदीप, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, अगर आप चैट में लिख सकें अपना पॉइंट। हाँ थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो आप एक जूनियर रिसर्चर हैं, एक कम्पिटिटिव मेडिकल रिसर्च इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। आपके सुपरवाइजर ने बोला है भाई पॉजिटिव फाइंडिंग्स डालनी है सिर्फ अपनी रिजल्ट्स के अंदर, नेगेटिव कोई नहीं इंक्लूड करनी, ठीक है, इनकंसिस्टेंट या नेगेटिव रिजल्ट नहीं इंक्लूड करने। तो क्या करेंगे आप? जी डॉक्टर दरोशम, क्या करेंगे आप? डॉक्टर मुनीम, जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स होंगी वही डालेंगे। जी, और क्या ये ठीक होगा? मेरे ख्याल से तो ठीक ठीक होगा। ओके, डॉक्टर अनीसा, क्या कहेंगे आप इस बारे में? आपकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा है पॉजिटिव फाइंडिंग्स आपने नेगेटिव छोड़ दो रिसर्च में से। Yes, देखिए, according to me, those findings which are actual and positive findings, which we should consider those one. And according to the second paragraph here, and this is the real scenario, as I'm also a surgeon, so we are dealing with this, and we know that we are sometimes we are suspecting or we are finding some unusual operative findings, and we are taking pictures, and sometimes we are making videos, but even taking without patient's consent for just for our learning. But actually, this is not the right way, and we are not following the right, like. और मैडम फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट भी हो रही होती हैं वो तस्वीरें या वो वीडियोस और सब कुछ? Sorry. वो मेडिकल कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी फिर सर्कुलेट हो रही होती हैं सर्जरी की पिक्चर्स? Not, I think this is only for our learning. We are keeping it to ourselves. Sometimes we might need to show it to our senior and discuss. We are suspecting this one, so not like that. ओके, सो रिगार्डलेस ऑफ के हम क्या ऑप्शंस चूज कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, हम इनमें कंप्लाई कर रहे थे या हम अपने सीनियर्स को मना कर रहे थे, हम कुछ ठीक कर रहे थे गलत या कुछ गलत कर रहे थे, बट क्या हमारी कॉन्शियंस हमें बता रही थी कि सही क्या है गलत क्या है इन ईच ऑफ दी सिनेरियोज? क्या हमें ठीक सही और गलत के बीच में फर्क मालूम था यहाँ पे? हाँ, somehow ठीक है, Not और हमें always. हमें नॉट नहीं, ऑलवेज, हमें कहीं ना कहीं तो Hmm. पता था, 80% तो हमें पता था। 80% नहीं। Habitual आप हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। सारे सिनेरियोज में पता था गलत है, लेकिन फिर भी कर रहे थे बिकॉज वी वर बाउंड। ओके, सोल्यूशन क्या है इसका? एचओडी के प्रेशर को फेस करने का, रिसर्च की फाइंडिंग्स पब्लिश करने का ताकि अच्छे जर्नल में हो जाए, गलत बात लिखेंगे तो पब्लिश नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पीयर हमारे कॉलीग ने कह दिया तस्वीर भेज दो एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों की क्या सोल्यूशन है? जैसे डॉक्टर सुमेरा ने कहा पॉलिसी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? व्हाट इज द सोल्यूशन बेसिकली? Awareness. ओके, सो डॉक्टर सुमेरा सेज अवेयरनेस, अवेयरनेस करेक्ट ऑफ करेंगे व्हाट? तो हम पर भी प्रेशर कम होगा। बिल्कुल। मैडम किस चीज़ की अवेयरनेस? एथिक्स, दैट इज व्हाट वी कॉल बायोएथिक्स। ओके, सो बायोएथिक्स की अवेयरनेस, ये जो रिपोर्ट्स थी, ये जो डॉक्यूमेंट्स थी, इनका पढ़ना जरूरी है? नॉट रियली, लाइक जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बायोएथिक्स के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इवन नो इट बट दे आर नॉट प्रैक्टिकल इनफ। तो रिपीटेडली ऐसे प्रोग्राम्स हों या मैंडेटरी कर दें, करिकुलम का पार्ट बना दें, बिकॉज इसके बगैर तो इन एवरी सिनेरियो यू मेंशन्ड उस सब में बायोएथिक्स ही रिक्वायर्ड थी, एंड दैट वाज फ्रॉम द सीनियर लेवल टू जूनियर लेवल, और इवन हमारे लेवल से भी जो हमसे जूनियर है, अगर हमें एथिक्स होगी सो वी वोंट प्रेशराइज अवर जूनियर द वे वी वर प्रेशर्ड ना। ठीक है, तो यानी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। और क्या सोल्यूशन है? डॉक्टर अदनान, आप कुछ बताना चाहेंगे? सोल्यूशन क्या है भाई इस प्रॉब्लम की? डॉक्टर अनीसा, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर दरोशम, एनीवन, क्या हाल है इस सब का? ये जो प्रेशर्स हैं हमारे सीनियर्स के, हमारे पीयर्स के, क्या इलाज क्या है इस सब का? Finally, the solution is we have to follow the ethical principle. जो ethical principle है हमें वो follow करनी चाहिए regardless of pressure. ओके, सो हमारे प्रिंसिपल्स पास को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एनीथिंग एल्स? प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या होगा इसका? क्या करें हम, क्या इम्प्लीमेंट करें? डॉक्टर सना, इफ यूड लाइक टू ऐड एनीथिंग?
डॉक्टर मुनीब, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है, अगर उसका कोई ऑडिट ना हो या फिर उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना हो कि अगर ये ना किया तो ये होगा, तो फिर ही कोई सीधापन आता है। नहीं तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें तो इम्प्लीमेंट करते रहें, एग्जीक्यूट करते रहें, फ़ायदा नहीं हो रहा होता। यानी तो मेरा ख्याल है पनिशमेंट कुछ होनी चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए, यस, कुछ ऑडिट होना चाहिए, कुछ ऐसी ऑडिटिंग पॉलिसीज़ होना चाहिए जिससे चीज़ों को रेक्टिफ़ाई करने में आसानी हो, कुछ हो। आई डोंट नो। ओके, तो देखिए जैसे आप सब लोगों ने मुझे बताया स्टार्ट में कि जितने भी सिनेरियोज थे, इन सब में सही और गलत का फर्क आप लोगों को 99% टाइम्स मालूम था। अब लोगों को कोई डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं थी। आपने आईसीएच जीसीबी प्रिंसिपल्स अभी डिटेल में नहीं पढ़े। आपने बेलमोंट रिपोर्ट जो है वो याद नहीं की, ठीक है। आपने जो है वो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो हिस्स नहीं की भी, लेकिन आपको पता था, ठीक है। आपके अंदर एक इनबिल्ट कॉन्शियस थी जो सही और गलत के बीच में फर्क करना जानती थी वहां पे। इन एडिशन टू दैट, पनिशमेंट देना या कोई पॉलिसी क्रिएट करना, इससे क्या ये बेहतर नहीं है कि आप अपने अंदर सोल्यूशन ढूंढें, अपनी कॉन्शियस के ऊपर एक्ट करें, अपने जो डेली लाइफ में रूटीन डिसीजंस हैं उसके अंदर एथिक्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें? क्या ये बेहतर नहीं होगा? व्हाट डू यू से अबाउट दैट? डॉक्टर मुनीब, एक सिंगल बंदा तो किसी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता ना। देखें, अगर मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मेरे ऊपर एक सीनियर बैठा हुआ है, अगर वो मुझे प्रेशराइज़ कर रहा है, मेरी अपनी प्रोग्रेस भी है, मेरी अपनी करियर भी है, तो मैं किस तरह से उसकी बात को डिनाई कर सकती हूँ? अब आप मतलब प्रैक्टिकली उस चीज़ में देखें ना, तो मतलब आई डोंट नो कि हम सिर्फ हम सोचते रहें, ऊपर वाला सोचे ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है? अब आप बताएं। तो क्या आप सब लोग डॉक्टर सना की बात से एग्री करते हैं? टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक ही इज राइट कि एक कलेक्टिव एफर्ट तो होना चाहिए, बट जैसे कि हम यूजुअली एथिक्स में देखते हैं कि जो भी यू स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ हमेशा। आपको देख के लोग सीख रहे होते हैं ना, जैसे हम सही करेंगे तो हमारे एटलीस्ट जूनियर्स कर लेंगे सही, ठीक है। तो वो रिपल इफेक्ट तो बनता ही है एक इंसान से भी। ओके, सो एंड कलेक्टिवली डू थिंक पॉलिसी exactly. इससे And फर्क during this पड़ता है। course, we are going to repeatedly come across such scenarios and some real life cases जिसके अंदर जो है कुछ लोगों ने whistle blowing की, कुछ लोगों ने जो है change initiate किया, और किस तरह से जो है उनकी ethical practices in their organizations वो बेहतर हो गई। हम उन scenarios को, हम उन cases को बकायदा पढ़ेंगे और उनको discuss भी करेंगे। Okay, so हम आगे बढ़ते हैं and let's dive a bit deeper. हमने बेसिकली शुरू में तो एक बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन देखी एथिक्स की ना। हमने कहा कि वो एक मोरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, राइट एंड रॉन्ग के बीच में फर्क है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड नाउ बिकॉज वी आर परस्यूइंग बायोमेडिकल एथिक्स एज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अ 1 year long एजुकेशनल जर्नी, तो हम थोड़ा सा डीप जाते हैं ना फर्स्ट लेक्चर एज वेल। एंड मैं कहूँगा आप लोगों से कि जस्ट गूगल खोलें अपने मोबाइल्स में, या चाहे तो चैट जीपीटी ओपन करें, कुछ भी ओपन करें, एंड मुझे इन तीनों के बीच में फर्क बताएं। एथिक्स क्या होती है, मोरालिटी क्या होती है, एंड एथिक्स एटिकेट्स क्या होते हैं? क्या ये तीनों एक ही बात है, या तीनों मुख्तलिफ हैं, और अगर मुख्तलिफ हैं तो कैसे? जस्ट अ लिटिल डिस्कशन। ओके, सो व्हाट डिड यू सर्च, व्हाट डिड यू फाइंड? क्या है एटिकेट्स, क्या है, और मोरालिटी क्या है, और क्या ये दोनों एथिक्स ही हैं, या क्या ये मुख्तलिफ है? एनीबडी प्लीज। जी डॉक्टर सुमेरा प्लीज। दे ऑल थ्री आर डिफरेंट। मोरालिटी आपकी पर्सनल होता है, आपका बिलीफ राइट एंड रॉन्ग का, ठीक है। आप एटिकेट आपका होता है जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उसकी बेसिस पे कि वो किसको सही गलत समझ रहे हैं। और एथिक्स जो है एक सिस्टम होता है स्टैंडर्ड्स का, रूल्स का,
जो गाइडलाइंस होती हैं, सिस्टमैटिक एक गाइडलाइंस वगैरह, वो एथिक्स है जो मैंने वेरी रिसर्च राइटफुली की सेड उसके डॉक्टर हिसाब सर, से। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मोरालिटी बेसिकली वंस बिलीफ है अबाउट राइट एंड रॉन्ग। ये इंटुइटिव है और यूजुअली सब्जेक्टिव होता है और अनएग्जामिन्ड होता है। इस पे अक्सर सवाल नहीं किया जाता, इसको एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता, एंड इसको मेजर करना भी बहुत मुश्किल होता है। एटिकेट्स जो है वो कस्टमरी कोड्स होते हैं ऑफ पोलाइट बिहेवियर, जैसे आपने कहा सोसाइटी में मेंबर्स में आपस में किस तरह से बात करनी है, सोशल नॉर्म्स क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वो कोई डीप सीटेड प्रिंसिपल्स नहीं होते राइट एंड रॉन्ग के। जबकि एथिक्स जो है दैट इज मच मोर। एथिक्स बेसिकली डिसिप्लिन है और सिस्टमैटिक इंक्वायरी है इनटू द नेचर ऑफ मोरालिटी। जब उसको हम मोरालिटी को डीपर लेवल पे एक्सप्लोर करते हैं, सो दैट इज व्हेन वी कम अक्रॉस एथिक्स। एंड एथिक्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। दे इन्वॉल्व रिफ्लेक्शन ऑन मोरल वैल्यूज एंड रीजनिंग अबाउट द इम्प्लीकेशंस फॉर प्रैक्टिस, कि जो हम मोरल वैल्यूज अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर वो हम अडॉप्ट करते हैं तो उनकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी प्रैक्टिस के ऊपर। एंड देन फाइनली एथिक्स रिक्वायर्स अस टू गो बियॉन्ड आई एंड यू टू द यूनिवर्सल लॉ, यानी वो आपकी हद तक या आपके पीयर्स आपके कॉलीग्स की हद तक नहीं रहते, वो आगे यूनिवर्सल लॉ तक जाते हैं। एंड दे आर यूनिवर्सलाइजेबल जजमेंट एंड स्टैंड पॉइंट ऑफ द इम्पार्शियल स्पेक्टेटर और आइडियल ऑब्जर्वर और वट एवर वी चूज टू कॉल इट। एंड आई वुड गिव यू a few moments to look at this table and then please tell me आपको क्या समझ में आता है इस टेबल को देखकर। सो बेसिकली जब आप इस टेबल को देखेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि एथिक्स सिर्फ आपकी फीलिंग्स नहीं है, बट आपकी एक्चुअल रिफ्लेक्शंस हैं ऑन योर मोरल वैल्यूज, एंड उनकी रीजनिंग क्या है उसके पीछे, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है फॉर प्रैक्टिस। इन सब चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज एथिक्स, एंड इट्स नॉट जस्ट फीलिंग्स। इसी तरह से सिर्फ सही और गलत का फर्क पता होना या इंट्यूशन होना वो आपकी एथिक्स नहीं है, बट एक्चुअली बीइंग सेंसिटिव टू एंड अवेयर ऑफ द मोरल एस्पेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ आवर प्रैक्टिस, वो एथिक्स है। एंड सिमिलरली सिर्फ आपके जो कोड्स ऑफ कंडक्ट्स हैं या सोशल कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करना विदाउट एनी इंक्वायरी, वो एथिक्स नहीं है, बट कि एक्चुअल एफर्ट डालना कि आप देखें कि आप जो डिसीजंस ले रहे हैं, जो आपके कल्चर्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनके बीच में क्या रैशनैलिटी है और क्या उनके बीच में रीजंस हैं और कौन से प्रिंसिपल्स हैं उनके पीछे, उन सबकी जो इंक्वायरी एंड एक्सप्लोरेशन है, उस स्टडी को हम स्टडी ऑफ बायोएथिक्स कहते हैं। एंड मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को मैं ज़्यादा आगे डिटेल में ना लेके जाऊं, बिकॉज आई थिंक हम कॉग्निटिव ओवरलोड में चले जाएंगे, बिकॉज दिस इज जस्ट योर फर्स्ट क्लास एंड आई एम गोइंग टू एंड इट हियर on discussion of ethics, morality and etiquettes। और इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, एंड आई बिलीव कि उस असाइनमेंट को करते हुए यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर एथिक्स, मोरालिटी एंड एटिकेट्स इन मोर डिटेल। इन एडिशन टू दैट मैं आपको एक फॉलो अप वीडियो भी अपलोड करूंगा आपके एलएमएस के ऊपर, जिसमें बेसिक फिलोसफिकल कुछ हमारी थ्योरीज हैं ऑफ एथिक्स, उनके बारे में सिर्फ मैं 2 मिनट्स की डिस्कशन जो है वो अपलोड करूंगा। एंड देन उसके बाद आपके कमिंग वीक्स के अंदर एक एक करके हम उस थ्योरी को डिस्कस करेंगे एंड उनको फर्दर अनफोल्ड करेंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन एंड आई एम गोइंग टू टेक यू टू योर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कहाँ मैंने आप लोगों के लिए असाइनमेंट अपलोड किया एंड हाउ यू कैन एक्सेस इट। Okay, so can you all see my screen? क्या आप सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? Yes. Okay, Yes. wonderful. This is your learning management system. Again, I believe कि आप सब लोगों ने अपने अपने अकाउंट्स क्रिएट कर लिए होंगे। This is a comprehensive इंटरफेस जहाँ पे आप लोगों का सारा स्टडी मटेरियल होगा। आप सबके एसेंशियल हैंडआउट्स होंगे जो आप लोगों ने पढ़ने हैं। हर लेक्चर से पहले एसेंशियल हैंडआउट्स अपलोड किए जाएंगे एंड यू विल ऑल बी एक्सपेक्टेड के हर लेक्चर से पहले जो रेलेवेंट 2 हैंडआउट्स होंगे वो आप लोगों ने रीड करने होंगे। इन एडिशन टू दैट कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपके केसेस जो हैं सब यहाँ अपलोड होंगे, आपकी क्विजेज, आपके असाइनमेंट्स, डिस्कशन बोर्ड्स, अगर हमने कोई डिस्कशन करनी होगी ऑनलाइन तो वो भी यहाँ होगी, एंड देन आपके जितने भी लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड
प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स उनकी यहाँ पे लेक्चर रिपोजिटरी के अंदर अपलोडेड होंगी। कुछ ऑप्शनल रीडिंग्स हैं जिसके अंदर डिटेल बुक्स हैं, कुछ बुक्स में जाके जबकि अलग अलग जब मॉड्यूल स्टार्ट होंगे तो उनसे रेलेवेंट बुक में और अपलोड करता रहूंगा। और आप लोगों का जो स्केड्यूल है वो भी यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लोडेड। आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो August 7 को होगा। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ महमूद लेंगे वो लेक्चर, एंड फर्स्ट मोरल थ्योरी जो है हमारी डियोंटोलॉजी की, उसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। आपकी पहली असाइनमेंट अपलोड हो चुकी है, व्हेन यू क्लिक ऑन व्यू असाइनमेंट्स तो आप उसे एक्सेस कर सकेंगे। एक सिनेरियो वहाँ पे गिवन है और टास्क है बेसिकली जो हमने डिस्कशन की है अबाउट एथिक्स, मोरालिटी एंड एटिकेट्स, उसी के बारे में एक सवाल है। आपने उसको डिटेल में पढ़ना है और आपने अपना नाम, ईमेल एड्रेस और अपना आंसर यहाँ पे टाइप इन करके उसे सबमिट कर देना है। यू हैव अ वीक टू डू इट। आप अगले वेंसडे से पहले पहले प्लीज ये क्वेश्चन पढ़ लें, गूगल पर थोड़ी सर्च कर लें अबाउट एथिक्स, मोरालिटी एंड एटिकेट्स, एंड देन अपने पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, अपने प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए इसका मुझे एक आंसर सबमिट करवा दें। आई वुड रिपीट कि ये ग्रेडेड नहीं है, इसके कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन दिस इज जस्ट अ वे टू गेट यू स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद योर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सो दैट आप अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से इंटरैक्ट करना शुरू हो जाएं। आपके थर्ड लेक्चर के बाद से आपकी ग्रेडेड क्विजेज, असाइनमेंट्स एंड आपके जो केसेस है वहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस एंड जस्ट फॉर योर